سر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. پچھلی آیت کریمہ جب ہوا کہ سب کے اکٹھا ہونے کی اور اس کے بعد کی جگہ جہنم ہے، تو جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس کو سنا اس کو جب بے حال ہو کے لوٹ پڑے، اور جب پکڑا ان کو، ان سے بات کی گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو یہ لکھا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ آیت کریمہ یہ نازل، کیا تھی؟ ان المتقین. اور ایک اور میں اس کی حدیث ہے وہ آپ کو سنا دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ یہاں پہ اس کے بارے میں آئے گی، انا غفور رحیم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مجلس میں نکلے، باہر آئے، دیکھا تو صحابہ کرام کسی بات پہ ہنس رہے تھے، تو اپنے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ تمہارے سامنے ہے اور تم ہنس رہے ہو. فوراً آیت کریمہ اٹھی کہ نہیں، میرے بندوں کو جو ہے وہ رحم کی خوشخبری سنا دو کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے رحم تخلیق کیا تھا تو اس میں سے 99 رحم جو ہے وہ 99% اللہ نے اپنے پاس رکھ لیا، 1% پھر باقی تمام مخلوقات میں بانٹ دیا، جس میں انسان ہے، حیوان ہے، جتنی بھی مخلوقات ہیں، 1% ان میں اور باقی سارا کے سارا میں. ان المتقین، بے شک متقی لوگ، پرہیزگار لوگ. کون متقی لوگ ہیں؟ جن کی ڈیفینیشن سورہ بقرہ کے شروع میں جو ہے بتا دی گئی. فی جنات، جنات کس کو کہتے ہیں؟ باغوں کو. وعیون، عیون عین کی جمع ہے چشمے. اب یہ ایک اسکیچ پورٹریٹ ایک کیا جا رہی ہے پکچر کہ متقی جو ہیں وہ باغوں میں اور چشموں میں ہوں گے، اس جگہ پہ ہوں گے جہاں پہ باغ ہیں اور چشمے ہیں. ادخلوہا، ادخلوہا لفظ کس سے ہے؟ داخلہ سے. الف کس لیے آیا یہاں پہ؟ امر کے لیے. ہاں اس میں مؤنث کی ضمیر، مؤنث کون سی مؤنث؟ یہ ان دونوں کی جمع کے لیے استعمال ہوگی. ادخلوہا، داخل ہو جاؤ اس میں، بسلام، سلامتی کے ساتھ، آمنین، اور بے خوف، اطمینان کے ساتھ، بغیر کسی ڈر کے. جیسے وہ آیت کریمہ ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ وہاں پہ کوئی ڈر ہوگا اور نہ وہاں پہ کوئی خوف ہوگا. جو ہوتا ہے وَلَا خَوْفٌ، خوف ہوتا ہے مستقبل کا اندیشہ، حزن ہوتا ہے جو پیچھے کیے ہوئے کے اوپر جو ہے وہ غم ہو جانا کہ میں یہ کر بیٹھا ہوں. تو یہاں پہ ان تمام چیزوں سے بری الذمہ قرار دیا گیا ہے. ادخلوها بسلام آمنین، داخل ہو جو ساتھ سلامتی اور امن کے ساتھ. ونزعنا، نزعنا لفظ کس سے ہے؟ ہماری اردو زبان میں عام لفظ استعمال ہوتا ہے، نزع کا عالم ہے اس کا. نزع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کھینچ لینا، نکال دینا. نہ متکلم استعمال ہوا ہے. ونزعنا، اور نکال دیں گے ہم، فی صدورہم، ان کے دلوں سے. صدر واحد، صدور اس کی جمع ہے، ان کے دلوں سے. من غلن، غلن کہتے ہیں کینہ، بغض، عداوت. اخوانن، بائی بائی ہو دو سارے، اخی کی جمع ہے. اللہ پر سرورن، سرورن لفظ ہے سریرن سے ہے. سریر کا معنی ہوتا ہے تختہ، سہری. اس کی جمع جو ہے وہ ہے تختوں پر. متقابلین، متقابلین، تقابل متقابل مد مقابل نہیں ہم کہتے، متقابلین، ایک دوسرے تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے. اس آیت کریمہ کا بھی شان نزول میں بتاتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے امید ہے اس آیت کریمہ کے بعد کہ اللہ میرے زبیر، طلحہ اور عثمان کے درمیان جو کینے ہیں وہ ختم کر دے، یہ رنجشیں دور فرما دے. اور یہ بات ہے جس وقت یہ رنجشیں کب سے تھی؟ یہ چاروں صحابہ کرام جو ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اس کمیٹی میں شامل تھے جس کمیٹی کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ مقرر فرمایا تھا اپنے بعد خلافت کے لیے. تو ان میں جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شہید ہوئے محاصرے میں، یہ ابھی 12 ذی الحج کی ڈیٹ تھی ان کی. اور جو باقی دونوں صحابہ تھے وہ جنگ جمل میں جو ہے وہ شہید ہوئے تھے، زبیر اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ اس کے بارے میں انہوں نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ مجھے امید ہے کہ اللہ میرے زبیر، عثمان اور طلحہ کے درمیان بھی رنجشیں جو ہے وہ دور فرما دیں گے، کیونکہ چاروں اشرف بشرہ میں سے نام ان کا کہ نکال اور کھینچ لیں گے ہم ان کے دلوں سے کینہ، بغض، عداوت. اللہ
सुरुरिन मुतकाबिलीन, तख्तों पर एक दूसरे के सामने बैठे हुए। ला यमस्सुहुम, अब लफ्ज़ इसमें से निकाल लीजिए क्या है। मस का माना क्या होता है? पहुंचना किसी चीज़ का। या अलामात मज़ारे लगा हुआ है, हम गायब की ज़मीन लगी है, नहीं पहुंचेगी उनको फीहा, इसमें, कहाँ पे? उस जन्नत में। नसबुन, नसबुन कहते हैं तंगी, तकलीफ, मुशक्क़त, सख्ती। उनको कोई तकलीफ वहाँ पे नहीं पहुंचेगी, कोई सख्ती नहीं आएगी। वमाहुम, और ना वो होंगे, मिनहा, इससे, बेमुखरजीन, बेमुखरजीन, निकाले जाने वालों में से। और लफ्ज़ क्या, ये मफूलन के वजन के ऊपर है, लफ्ज़ तो वही है, खारज हो जाना, खारजा, निकाल दिया जाना, बेमुखरजीन, और ना वो वहाँ से निकाले जाने वाले। नबी, नबी खबर दे दीजिए, बता दीजिए, इबादी, मेरे बंदों को, इन्नी, अन्नी, अन्नी, बेशक मैं, अना गफूरुर रहीम, अनल गफूरुर रहीम, मैं हूँ बड़ा बख्शे। गफूर फाउलन के वजन के ऊपर बहुत ज़्यादा बख्शने, बहुत ज़्यादा बख्शने वाला। और रहीम फ़ैलुन के वजन के ऊपर हमेशा अज़ल से लेके अबद अबद तक रहम फरमाने वाला। मैं ही हूँ बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला। तो अन्ना, और ये भी याद रखो, अन्ना बेशक, अज़ाबी, मेरा अज़ाब, वल अज़ाबुल अलीम, बहुत दर्दनाक अज़ाब। ये दोनों चीज़ें इसके बारे में है कि अगर लोगों को अल्लाह के रहम के बारे में पता चल जाए तो लोग जो है वो बेफिक्रे हो जाएं, फिर जो मर्जी करते हैं कि अल्लाह का रहम इतना। और अगर अल्लाह के डर के बारे में पता चल जाए तो उस डर में अपनी जान को हलाकत में डाल। इन्नल मुत्तकीना फी जन्नातिन व अयून, और बेशक मुत्तकी जन्नबागों में और चश्मों में होंगे। उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन, दाखिल हो जो अमन के साथ, कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं। नज़ाना, और निकाल देंगे हम, माफी सदूरिहिम मिन गिल्लिन गिल्लिन, और निकाल देंगे उनके दिलों से कीना, बुग़्ज़। इख्वानन, भाई भाई बन के, अला सुरुरिन मुतकाबिलीन, तख्तों पर विराजमान होंगे एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल, एक दूसरे के मुकाबिल। ला यमस्सुहुम, नहीं पहुंचेगा उनको, पहुंचेगी फीहा नसबुन, इसमें कोई तंगी, कोई मुसीबत, कोई मुश्किल, कोई सख्ती नहीं आएगी। वमा हुम मिन्हा बिमुखरजीन, और ना वो वहाँ से निकाले जाएंगे। नबी, नबी इबादी, ए मेरे बंदों को, ए नबी मेरे बंदों को खबर दे दीजिए। अबादी, इबाद जमा बंदे की है, अबद की, और या मफऊल मैं के लिए इस्तेमाल हुआ है। मेरे बंदों को, अन्नी, बेशक मैं, अनल गफूरुर रहीम, मैं ही हूँ बख्शने वाला, रहम करने वाला। वन्ना अज़ाबी, और बेशक मेरा अज़ाब है, हुवल अज़ाबुल अलीम, जो कि बहुत दर्दनाक अज़ाब है। मफ़हूम पे आ जाइए, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि कुरान पाक जो है वो इसीलिए इसको कुरानुल फुरक़ान कहा जाता है। ये फ़र्क करने वाली किताब है। यहाँ पे जहन्नमियों का जिक्र हुआ, काफिरों का जिक्र हुआ, वहीं पे जो है फिर जन्नतियों की, मुत्तकियों के लिए खुशखबरियाँ सुनाई जा रही हैं। जहाँ जहन्नम के बारे में बताया गया कि जहन्नम में इतने 7 दरवाजे होंगे, तो यहाँ जन्नत, जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, वहाँ जहन्नम के 8 दरवाजे। तो यहाँ पे उनके बारे में बताया कि जो मुत्तकी लोग होंगे। ला रैब फीह ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, और मुत्तकीन कौन है? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। ये उनके बारे में उस ब्रॉडर डेफिनेशन के सेंस में, इन्नल मुत्तकीना फी जन्नातिन व अयून। मुत्तकी कौन है? मुत्तकी जो अपने आप को जो है वो इस दुनिया से, जिस तरह एक कारदार झाड़ी से अपने आप को बचा ले कि कहीं कोई कांटे उसके कपड़ों में उलझ ना जाएं और जख्मी ना कर दें उसको, या कपड़े ना फाट जाएं, तो इसी तरह वो दुनिया से मुसाफिर की तरह अपने आप को बचा के रहे। मुत्तकी कौन है? जो अल्लाह का डर रखने वाला है, जो कोई भी काम करने से पहले अल्लाह की रज़ा देखता है कि अल्लाह ने इसके बारे में जो है वो क्या हुक्म फरमाया है। वो सवाल अल्लाह से करता है, वो सर अल्लाह के आगे झुकाता है। और फरमाया गया कि मुत्तकियों की जो ब्रॉडर डेफिनेशन है, जिसने शिरक नहीं किया वो जन्नत में है, जिसने शिरक नहीं किया वो जन्नत में है। मुत्तकी होंगे बागों में और चश्मों में। आज हमें क्यों बागात, पहाड़, चश्मे फैसिनेट करते हैं? पानी, हम उसी प्लेनेट की जो है वो मखलूक है जहाँ से निकाले गए हैं, तो हमारे अंदर जो है वो बैठी हुई है। आज भी हमें जो है वो वही चीज़ जो है वो करती है। आज भी हम छुट्टियों में जो है वो चाहते हैं, घर बनता है सबसे पहले उसमें लॉन देखा जाता है, लॉन रखा जाता है, इसलिए कि वो ग्रीनरी, वो बागात हम चाहते हैं। फिर उसमें चाहते हैं हम कि छोटा मोटा कोई पानी का कोई फुआरा, कोई फाउंटेन शॉन्टेन, कोई आबशार कोई लग जाए, इसीलिए कि वो बिल्डन चीज़ें हैं।
जैसे 4 दिन छुट्टी के मिलते हैं, हम भाग के पहाड़ों में जाते हैं। अब तो तारीख ये जदीद साइंस भी यही कह रही है कि इंसान इस प्लेनेट का बशिंदा है, ये जहाँ से निकाला गया है सारी उम्र उसी तगोदो में रहता है उसकी वापस जाने की। तो जो चीज़ अंदर बिल्ट इन है वही तुम्हारे लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जो बिल्ट इन की है, बागात हैं, चश्मे हैं, और फिर वहाँ पे कहा जाएगा उदखुलूहा बिसलामिन आमीन, दाखिल हो जो उसमें अमन के साथ, सुकून के साथ। अब कोई फिक्र फाका नहीं, अब कोई डर नहीं है, इत्मीनान है तुम्हारे लिए। जो तुमने मुश्किलें झेलनी थी, जो तंगियां झेलनी थी, जो खाने पीने की फिक्र होती थी, कमाने की फिक्र होती थी, अब सारी खत्म होगी तुम्हारे लिए। उदखुलूहा बिसलामिन आमीनीन, दाखिल हो जो इसमें सलामती के साथ और अमन के साथ। नज़ाना, और खींच देंगे हम माफ़ी सदूरहिम, तुम्हारे दिलों से। यही बात जो है वो आप देखिए सूरह आराफ में फरमाई गई है, नज़ाना माफ़ी सदूरहिम मिन किल्लिन तजरी, कि हम निकाल देंगे उनके दिलों से कीना, सख्ती, कीना निकाल देंगे, बुग़्ज़ निकाल देंगे। यहाँ पे जो एक दूसरे के खिलाफ रंजिशें हैं, जिस वक्त जन्नत में दाखिल होने लगेंगे उस वक्त तक वो होंगी, लेकिन उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला फिर वो सारी रंजिशें निकाल बाहर करेंगे। वहाँ जाके फिर सारे एक दूसरे के भाई भाई बनेंगे, निकाल देंगे हम सब कुछ उनके दिलों से। तजरी मिन तहतिल अनहार, जारी हैं जिसके लिए तख्तों पे बैठे होंगे, नीचे से नहरें जारी हैं। वहाँ पे क्या कहेंगे? वहाँ पे फिर ये फिक्र नहीं होगी तूने ये कर दिया, खाने की फिक्र नहीं, माश की फिक्र नहीं। वहाँ क्या होगी? कालो वकालो, कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाजा, हम तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने हमें इस रास्ता दिखाया, जिसकी वजह से जो है वो हम यहाँ पे पहुँचे। इसमें हमारा कोई कमाल नहीं, इसमें जो है वो हमारी कोई मेहनत नहीं है, ये मेहनत ये अल्लाह तबारक व तआला की रहमत है। वमा कुन्ना लिनहतदिया, और नहीं होते हम हदायत वाले, लौला अन हदाना अल्लाह, अगर हमें अल्लाह हदायत ना दे। अपना कोई कमाल नहीं वहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि मैंने ये किया। देखिए जो दुनिया के मुतलाशी होते हैं, दुनिया में जब कोई अचीवमेंट मिलती है तो उसको अपने नाम पे, मैंने मेहनतें की तो मैंने फलां डिग्री हासिल कर ली, वो सब कुछ अपने नाम के साथ मंसूब कर देते हैं, या दुनियावी जो आका, जो दुनियावी बुत गढ़ रखे हैं उनके नाम पे मंसूब कर देते हैं कि जी ये नौकरी अगर फलां एमएनए ना होता तो मुझे मिल ही नहीं सकती, ये फलां साहब ना होता तो इस मनसब में मैं पहुंच ही नहीं सकता था। हालांकि रहमत किसकी है? अल्लाह की। जन्नती लोग जब यहाँ पे उनको कुछ मिलता है, कोई फल लगता है उनके ऊपर, तो वो अल्लाह के शुक्रगुजार होते हैं, वो दुनियावी आकाओं को खुश नहीं करते। वो चूँकि यहाँ पे भी अल्लाह की रज़ा पे राज़ी होते थे और वहाँ पे भी अल्लाह की रज़ा पे जो है वो राज़ी होंगे, और वहाँ पे भी जब जन्नतों में दाखिल कर दिए जाएंगे वहाँ पे भी वो यही कहेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, ये उस अल्लाह की तारीफ़ें हैं जिसने हमें इसकी हिदायत दी, और अगर वो हमें हिदायत ना देता तो हम इस काबिल नहीं थे। लक़द जाअत रुसुलुन रब्बिना बिल हक़, बिलाशुबा आए रसूल हमारे परवरदिगार की तरफ से हमें समझाने के लिए, हमें पटड़ी पे चढ़ाने के लिए, बिल हक़ के साथ, सच्चाई के साथ। अनूदू, और बता दो, अंतिल कमुल जन्नत, ये है वो जन्नत। फिर अल्लाह तबारक व तआला भी उन पे एहसान फरमाएंगे। एहसान फरमा के ये नहीं कहेंगे कि ये मेरी रहमत, क्या फरमाएंगे? अंतिल कमुल जन्नत वरिस्तुमूहा बिमा कुंतुम तामलून। अल्लाह फिर उनको जो है वो और राज़ी करेंगे। किस तरह राज़ी करेंगे? ये वो जन्नत है जिसके तुम वारिस बनाए गए हो, बसबब इसके तुम अमाल अच्छे करते रहे। ये अल्लाह तबारक व तआला की रहमत है कि अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त इंसानों को जो है वो ये शर्फ़ कबूलियत, ये एक तो अपनी जो है वो शर्फ़ बायाबी बख्शेंगे, उसके बाद फिर ये भी कहेंगे कि ये जो कुछ है ये सारे का सारा तुम्हारे अमाल। लेकिन लोग क्या कहेंगे? ये सब कुछ अल्लाह है। वरिस्तुमूहा बिमा कुंतुम तामलून, ये तुम वारिस बनाए गए हो इसके, बिमा कुंतुम बसबब इसके कि तुम जो है वो अमल करते। लेकिन लोग यही कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, वहाँ पे तस्बीहात होंगी, वहाँ पे तहमीदात होंगी, और उसके अलावा भी कुछ नहीं होगा। वक़ालू सलामा सलाम, और सलाम सलाम कहा जाएगा, सलामती सलामती ही वहाँ पे। ये है वो जगह जहाँ के ऊपर कहा गया है, तख्तों पे बैठे होंगे, भाई भाई बने हुए होंगे। ला यमस्सुहुम फ़ीहा नसबुन, नहीं पहुँचेगी उनको कोई सख्त, कोई तकलीफ, कोई डर, कोई बीमारी, कोई मुशक्क़त, कोई माश की फ़िक्र, कोई और चीज़ कुछ नहीं होगी। सिर्फ और सुकून वाला जहाँ पे जो है वो कुछ ऐसी चीज़ नहीं। और इसकी गारंटी ये अल्लाह तबारक व तआला अपनी किताब में फरमा रहे हैं कि ना वहाँ पे कोई तकलीफ़ पहुँचेगी, मुशक्क़त पहुँचेगी, मुसीबत होगी, तो मा हुम मिन्हा बिमुखरजीन, और ना वो निकाले जाएंगे। एक ये जो दिल में डर होता है कि पता नहीं कोई खुशी मिली है, ये कब तक है, लेकिन वो खुशी वो होगी जो दायमी होगी,
जो अबदी होगी, जिसके बारे में गारंटी कर दिया गया है, वमा हुम मिन्हा बिमुखरजीन, तो नहीं निकाले जाएंगे उसमें से कभी भी। अल्लाह तबारक व तआला दुआ कीजिए, अल्लाहुम्मा जअलना मिन, आमीन, अल्लाहुम्मा जअलना मिन, आमीन, अल्लाहुम्मा जअलना मिन। अल्लाह हमें इनमें से दाखिल कर दे जिनको जो है अल्लाह तबारक व तआला ने ये खुशखबरियाँ सुनाई। और फिर बताया गया, ऐ नबी खुशखबरी दे दीजिए, खबर दे दीजिए मेरे बंदों को, अन्नी अना गफूरुर रहीम, मैं बहुत बख्शने वाला, बहुत रहम करने वाला हूँ। जैसे मैंने पहले हदीस अर्ज की, इसकी शान नज़ूल की कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए, मजलिस में देखा साहबा किसी बात पे जोर से हंस रहे हैं, तो फरमाया दोज़ख तुम्हारे सामने, तुम हंस रहे हो। फरमाया नबी खबर दे दो इनको, मैं बहुत बख्शने वाला हूँ और बहुत ही रहम करने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए दोनों चीज़ें हमें अपने ज़हन में रखनी है। यही चीज़ जो है वो बार बार ये, एक तो ये अल्लाह की दो सिफात बताई गई, एक अल्लाह तबारक व तआला बहुत बख्शने वाले, बहुत रहम करने वाले। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि 99% रहम अल्लाह के पास है। रहम लफ्ज़ किससे मुश्तक है? रहम मादर भी हम देखते हैं, ये रहम वही है जो अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के नीचे, उसी से जो है वो रहम का लफ्ज़ है। 99% रहम अल्लाह के पास है। लोगों को अल्लाह के रहम के बारे में पता चल जाए, लोग यहाँ पे अल्लाह से डरना छोड़ दें। तो यहाँ पे अल्लाह की दोनों सिफात जो है वो बयान की गई हैं। कौन सी सिफात? एक अल्लाह की जो है वो गफूरुर रहीम की सिफात, और दूसरी कि अल्लाह दर्दनाक अजाब देने वाले भी हैं। अब इसका मतलब ये हुआ, एक तरफ अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखी जाए और दूसरी तरफ जो है वो अल्लाह से डर रखा जाए, और ये हो कि अपने अमाल की बेसिस के ऊपर नहीं। वो क्या लिखा है सूरह सईदा में, वयदऊना रब्बहुम, वो पुकारते हैं अपने रब को, खौफन व तमा, डर के साथ और फिर उम्मीद के साथ। डरते भी हैं उससे और फिर लालच भी है कि अल्लाह तू माफ़ भी करने वाला है। तो ये वही दोनों बातें हैं कि अल्लाह तू गफूरुर रहीम भी है और तेरे इस हिसाब से डर भी लगता है। और यही बात जो है वो सूरह आराफ की आयत नंबर 56 में भी लिखी हुई है, अदूहू, वो पुकारते हैं उसको, खौफन व तमा, तबा नहीं, लालच, वो डर और लालच के साथ पुकारते हैं। इन्ना रहमतुल्लाह करीबुन मिनल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह की रहमत मुहसिनों के बड़ी करीब है, बहुत करीब है। अब ये वो वही कैफियत है मुत्तकी की कि मुत्तकी जो है वो डरता भी रहता है अल्लाह से कि कहीं मेरा कोई चीज़, और उसके बाद फिर भी ये सारी उम्र जो है वो चाहे भूखा रह जाए, कभी हराम का लुक़मा पास नहीं आने देता, उसको फिर भी डर लगा रहता है, पता नहीं मेरी ये इबादत, ये रियाज़त कबूल हुई है कि नहीं। तो ये डर लगा रहता है, लेकिन साथ फिर उसको जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जब ये खुशखबरियाँ आती हैं, इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व अयून, तो फिर जो है वो अल्लाह की रहमत का ये वो आस भी लगा के रखा है। जब तक आस रहती है उसको, ये वही है खौफन व तमन, कि डर के साथ और लालच के साथ, कि डरना भी है अल्लाह से, वला खौफुन अलैहिम, ना कोई फिर खौफ रह जाएगा, वला हम यहज़नून, और ना जो है उसके ऊपर कोई हज़न होगा। खौफ के मेरे साथ ये ना हो जाए, जैसे अभी डर है कि जब लेने वाला आएगा पता नहीं किस तरह लेने आएगा, क्या उस वक्त वो अच्छा लिबास लेके आएगा या उस वक्त जो है वो फिर उस वक्त टाट में लपेट के जो है वो ले जाया जाएगा, क्या उस वक्त वो सलाम आके कहेंगे और सलामती के साथ ऊपर जो है वो लेके जाएंगे और लोग पूछेंगे तो फिर सलामा सलामा होगा, और फिर जो है उसी तरह जो है वो लाया जाएगा और ला के जन्नत की खिड़कियाँ कब्र में खोल दी जाएंगी या के ऊपर से ला के लिए सिज्जीन में फेंक दिया जाएगा। ये डर है, ये खौफ है। और ये किस बेसिस पे है? हमारी अपनी ज़िंदगी के करतूतों की, हमारे अपने गुनाहों की बेसिस के ऊपर, कि जो राह हमें बताई गई थी वो राह हम भूल बैठे, जिस रास्ते पे चलने के लिए हमें कहा गया था वो रास्ता हम खोटा कर बैठे हैं। हमें कुरान पढ़ने के लिए दिया गया था, हमने कुरान को जो है वो अपने घर में सबसे ऊंची जगह पे सजा के रख दिया, हमने खोल के नहीं देखा कुरान क्या है। सवाए एसाले सवाब और हसूल सवाब के कोई तीसरा काम हमने इससे नहीं लिया। यहाँ लिया तो फिर हमने कसम उठाने के लिए लिया या बच्ची ब्याहने के लिए सर पे रखने के लिए लिया, बस इसके अलावा और कोई काम हमने नहीं लिया। तो जो सीधा रास्ता हमें दिखाया गया था ये है वो हज़न कि हमारी ज़िंदगियाँ गुजर गई इसी दुनिया के चक्कर में, इसी दुनिया को हासिल करने के लिए जो है वो हमने जो है वो सब कुछ अपना बर्बाद कर दिया। जिस काम के लिए हम पैदा की, देखिए तख्लीक़ इंसान का मकसद क्या है? इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया, अशरफुल मखलूक़ात बनाने के साथ अपना नायब बनाया, और नायब बनाया और बता के कहा कि जाओ दुनिया पे जाओ और जाके मेरे अहकामात के मुताबिक मेरी मखलूक के साथ जो है वो इस तरह रहम करो। लेकिन यहाँ पे आके जो है वो हमने अल्लाह का नायब बनने की बजाय किसी और के सामने जो है वो सर झुकाने शुरू कर दिया। तो यहाँ पे ये उन्हीं के बारे में
خوف کے ساتھ بھی پکارتے ہیں، وطمن اور لالچ کے ساتھ پکارتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بخشنے والے، بہت فعولاً بخشنے والے، کتنا ہمیں نہیں پتا کتنا اس کی رحمت، اور بہت زیادہ رحم کرنے والے، ازل سے لے کے ابد ابد تک رحم فرمانے والے۔ اس کی رحم میں ہمیشگی ہے، دعام ہے، کتنا رحم ہے ہم سوچ نہیں سکتے اس کا۔ تو ایک تو اللہ جو ہے بتا دو میرے بندوں کو کہ میں بخشنے والا، رحم کرنے والا ہوں، میری رحمت سے امید رکھیں، اور پھر اتنے بھی سرفے نہ ہو جائیں کہ جہاں پہ جو ہے وہ میری اس حدود کو جو ہے وہ پار کر دیں۔ تو ان کو یہ بھی بتا دو انا عذابی هو العذاب العلیم، بے شک میرا عذاب بھی بہت دردناک ہے۔ تو جس وقت راہ کھوٹا ہونے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ ایک دفعہ میں بتاتا ضرور ہے کہ غلط راہ میں چل گئے، اس راہ میں جب وہ نفس ملامت کرتا ہے تو اس وقت رک گئے تو رک گئے، نہیں اس کی بات انسنی کر دی تو پھر انہی کے بارے میں ون عذابی، اور بتا دو ان کو یہ بھی کہ میرا عذاب جو ہے وہ بہت دردناک ہے۔ اور یہ پچھلی ہم نے جیسے حاویہ پڑھا، ہم نے پچھلی 7 دروازوں کے نام جہنم کی، کہ ایسی ایسی وادیاں ہیں، ایسی ایسی گاڑیاں، جیسے ویلن جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ تو کون سی وادی ہے؟ وہ پیپ اور خون سے بڑی ہوئی وادی، اس وادی میں بھی جہنمی ہیں۔ اللہم لا جعلنا، اللہم لا جعلنا، اللہم لا جعلنا۔ تو جنتیوں کے لیے خوشخبریاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان میں سے کر دے۔ ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گارنٹی کے ساتھ بتایا ہے کہ جنتی متقی یہاں پہ ہوں گے، سلامتی ہوگی، امن ہوگا۔ جو یہ جو کینے، رنجشیں، عداوت جو ہم دلوں میں بھر کے ایک دوسرے کے خلاف جو ہے منہ پہ ہم بھائی ہوتے ہیں، اندر سے ہوتے ہیں، جب دیکھیں گے کہ وہ بھی جنت میں جا رہا ہے، وہ بھی جنت میں جا رہا ہے، اس وقت تک دل میں ہوں گے یہ، لیکن جب داخل کیے جائیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز نکال باہر کریں گے۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہے؟ اخواناً، بھائی بھائی بن جائیں گے سارے، علی سرر متقابلین، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے جو ہے وہ پھر جو ہے وہ بات چیت کریں گے۔ کیا فرمایا آپ نے؟ وہاں پہ نہ کوئی سختی ہوگی، مصیبت نہیں ہوگی، مشقت نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی، اور نہ وہ نہیں۔ دیکھیں ایک ایسی جگہ جہاں پہنچا دیا جائے، جہاں پہ نہ کھانے کی فکر، نہ پینے کی فکر، نہ معاش کی فکر، نہ کسی اور چیز کی فکر، اور پھر ساتھ گارنٹی بھی یہ ہو کہ اب یہاں سے واپسی نہیں ہے، وہی ابدی زندگی ہے، اسی کے لیے محنت کرنی ہے ہمیں۔ یہ 4 دن کی زندگی جو ہمیں ملی ہوئی ہے، کہ اسی میں جو ہے وہ ہمارے لیے دارالامتحان ہے۔ اس امتحان میں اگر ہم پار ہو گئے تو پھر یہ ہماری منصور ہے، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ ہم سب اور تمام مسلمان میں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ اللهم بارک على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا، ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، آمين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، آمين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔